Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we are going for lecture number 6 from unit number 4, and that is all about compass traversing. In previous lecture we have seen that how we can calculate the included angle from a traverse. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि यदि हमें कंपास सर्वे करना है तो जो स्टेशंस है वहाँ पे हमें पेग लगा के वी कैन एस्टैब्लिश द सर्वे लाइन्स हम लोग बना सकते. सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन ए बी सी डी इन दिस वे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी कैन सेट द क्लोज ट्रैवर्स, एंड इफ सच क्लोज ट्रैवर्स इज सेट तो फिर हमें उसकी लाइन की लंबाई और हर एक लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग by using compass we have to observe. So we have to observe the length, forebearing and back bearing of given survey line, and with this data we can draw the map of that closed traverse or that map of that boundary on the drawing sheet with the suitable scale. So we have seen that there are two methods for checking this data from the field. One is you have to make the correction for local attraction. So in the previous lecture we have also seen that how we can apply the correction for local attraction by checking the forebearing and back bearing of the survey line and ensuring that the difference is exact 180. We can ensure that there is no local attraction or there is a effect of local attraction. So from that we can calculate the correction for local attraction, and from that we can calculate the corrected bearing. Similarly, other method also we have seen in previous lecture, where we have seen that by calculating the included angle of the traverse we can check that the sum of the included angle should be 2n minus 4 into 90, where n is the number of sides, and in that case we can calculate the included angle by using the formula back bearing of previous line minus fore bearing of next line. So in this way we can collect the data, we can correct the bearing, we can check for included angle, and if the bearings are correct and length is known, then we can construct a traverse on the drawing sheet on the map. So in this lesson we will see what are the methods of traversing, what is the principle of compass traverse, and what is the closed traverse and open traverse, and what is closing error, and how we can adjust it graphically. So here one by one we will see that first of all we will see what are the method of traversing. So there are two methods, actually the types of traverse if we talk about, then there is a closed traverse and then another is open traverse. So when we use the closed traverse, so you can understand that closed traverse का मतलब है कि हमारा 1 2 3 4 जैसा भी होगा वो लाइक दैट ए बी सी डी ई एफ जी एंड दिस इज ए अगेन. सो ऑल दीज आर द सर्वे स्टेशंस and these are the survey lines. So the first end and the last end is closed, so this is called as closed traverse. तो सपोज कॉलेज के कैंपस का मुझे कैसा शेप है, कॉलेज का जो ग्राउंड है या कॉलेज का जो कैंपस का एरिया है उसका शेप कैसा है, उसका मुझे यदि मैप बनाना है तो कॉलेज का जो भी बाउंड्री वॉल होगी, कंपाउंड वॉल होगी, या भी जो भी एरिया होगा उसका डायग्राम हमको निकालना है. सो इट विल बी लाइक दिस ओनली. बाउंड्री है तो क्लोज बाउंड्री है, या कोई किसी का खेत गिनना है तो खेत आपका जैसा भी शेप होगा खेत का लाइक वे, तो जैसी जैसी ज़मीन और जैसे जैसे खेत के धुरे होंगे उसके हिसाब से खेत का जो शेप है उसके लिए एक सर्वे लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसी सर्वे लाइन बना के हम लोग उसका शेप बना सकते हैं. लेकिन ये शेप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एंगल, और एंगल के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंपास ट्रैवर्स का. लेंथ तो हम लोग गिन रहे हैं चेन से या फिर टेप से, लेकिन एंगल गिनने के लिए हम लोग कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द कंपास ट्रैवर्स. सो पर्टिकुलरली व्हेन वी आर मेजरिंग ए पीस ऑफ लैंड और द शेप ऑफ लैंड आपको बनाना है, कैंपस का ड्राइंग बनाना है, किसी प्लॉट का शेप निकालना है, किसी खेत का शेप निकालना है. सो ऑल दे आर एक्चुअली द
close traverse. So start station and the end station are same and the lines are connected in serial order. So line AB, BC, CD, they are connected to each other in serial order and the last station is again one and the same. Start and end station is same. So thus such type of polygon or traverse, close boundary, that is called as close traverse. तो कुछ जगह पे जहाँ पर एरिया पर्टिकुलरली गिनना है या शेप का पता करना है हमको, सो वी हैव टू गो फॉर क्लोज ट्रैवर्स. जैसा वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के लिए क्लोज ट्रैवर्स लगेगा, खेत के लिए क्लोज ट्रैवर्स लगेगा, कैंपस के ड्राइंग के लिए क्लोज ट्रैवर्स लगेगा, प्लॉट गिनने के लिए भी क्लोज ट्रैवर्स लगेगा, सिटी के मैप के लिए क्लोज ट्रैवर्स लगेगा. सो लाइक वे देयर आर सम एरियाज वेयर वी हैव टू कंसिडर द क्लोज ट्रैवर्स फॉर सर्वेइंग. In some area we have to use the open traverse. अब ओपन ट्रैवर्स का मतलब क्या है कि स्टार्ट और एंड उसका फिक्स नहीं है, स्टार्ट और एंड अलग अलग है उसका. तो मैंने ए पॉइंट से सर्वे चालू किया, बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, फिर डी से ई तक गया और ऐसा करके मेरी ए बी सी डी ई ऐसी एक सर्वे लाइन बन गई, ए बी सी डी. सो हियर ऑल्सो आई कैन मेजर द एंगल. यहाँ पर मैं ए बी का एंगल, यहाँ पे बी सी का एंगल, यहाँ पे सी डी का एंगल, यहाँ पे डी ई का एंगल, ये तो एंगल तो मैं यहाँ भी गिन सकता हूँ. सो हियर ऑल्सो आई एम मेजरिंग द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग एंड लेंथ ऑल्सो. सो इन ऑल द ट्रैवर्स डाटा इज सेम, लेंथ, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. Moreover, you can also calculate included angle also. But here the start station and end station, they are not close together. And this is actually the open traverse. तो यदि हमको कोई नया रास्ता बनाना है तो मुझे चालू करना पड़ेगा ऐसा 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 जो भी है, मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ तक जाएगा तो मुझे सर्वे करना पड़ेगा. सो इन सच केस फॉर द सर्वे ऑफ द रोड आई हैव टू यूज द ओपन ट्रैवर्स. या किसी डैम से मेरे नहर निकल रही, कैनाल अलाइनमेंट का मुझे लेआउट करना है तो कैनाल अलाइनमेंट भी, कैनाल तो यहाँ से स्टार्ट हो गया तो आगे 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 जाते जाएगा. सो फॉर कैनाल अलाइनमेंट वी कैन यूज द ओपन ट्रैवर्स. या कोई रिवर का सर्वे करना है तो रिवर के साइड से आपको सर्वे लाइन लेके जानी पड़ेंगी, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओपन ट्रैवर्स. रेलवे ट्रैक का अलाइनमेंट करना है सो ओपन ट्रैवर्स यू हैव टू यूज. सो इन सच केसेस देयर आर सम प्लेसेस वेयर वी यूज द ओपन ट्रैवर्स for surveying and some places we are using closed traverse for surveying. So depending upon this we can use the different method of traversing. तो इसके पहले हमने देखा चेन ट्रैवर्सिंग. तो चेन से हम लोग ट्रायंगल बना के एक ट्रैवर्स बना सकते हैं एंड उसका एरिया भी मेजर कर सकते हैं. सो वी हैव सॉल्व द वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द एरिया बाय यूजिंग चेन सर्वे. सो दैट इज चेन ट्रैवर्सिंग. चेन का इस्तेमाल करके ट्रायंगल्स बना के, परपेंडिकुलर ऑफसेट बना के वी कैन कैलकुलेट द एरिया और ड्रॉ द शेप ऑफ द ग्राउंड. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव द कंपास ट्रैवर्सिंग. जैसा यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हर जगह पे कंपास रख के फोर बेरिंग हर एक लाइन का गिनने का और बैक बेरिंग गिनने का. सो एट एवरी प्लेस आई एम मेजरिंग द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द सर्वे लाइन एंड लाइक वे. So we can have these angles, forward bearing and back bearing. We can calculate included angle and then we can draw this type of shape on the drawing sheet. So that is compass traverse. So chain traverse, here only we are measuring the distance. So and well conditioned triangle we will form. So it is very easy thing. Now with the compass survey we will see little bit what the new thing is there. Similarly in the forthcoming units we are also learning about the theodolite traversing. हमारा जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 3 इज ऑल अबाउट थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग. तो वो यूनिट में हम लोग थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कैसा करने का है, अगेन वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट सर्विंग प्रोसीजर. एंड सिमिलरली इन द लास्ट यूनिट ऑल्सो वी विल सी अबाउट द प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग. तो छठवां यूनिट हमारा प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग का है, पांचवा यूनिट हमारा थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग का है. एंड नाउ दिस यूनिट इज अबाउट कंपास ट्रैवर्सिंग. सो नाउ वी विल सी फॉर दैट हाउ द कंपास ट्रैवर्सिंग्स can be used. So already we have discussed, यदि कंपास सर्वे करना है, चेन एंड कंपास सर्वे, तो मुझे सबसे पहले आई हैव टू फिक्स द सर्वे स्टेशन एट वेरियस लोकेशन. सो आई विल फिक्स द सर्वे स्टेशन ए, देन आई विल फिक्स द सर्वे स्टेशन बी, देन सी,
then D, then E, and then last is again A. So this is closed traverse. So what I have to do, I have to place the compass and measure the bearing of line AB. So forebearing of AB, that we will measure. Again we will place the compass at B and we will measure the forebearing of BC. So for this forebearing we will measure. Then from C location we will measure the forebearing of CD. From D we will measure for D. At E we will measure for EA. So हर स्टेशन पे हमको फोर बेरिंग तो गिनना ही है लाइन का, लेकिन पिछले वाले लाइन का बैक बेरिंग भी गिनना है. So in the compass survey it is very easy that we have to measure the length of the survey line, then we have to measure the forebearing and back bearing of the survey line, and by using the compass. And then for internal objects you can have the survey line chain line, and then you can take the offset and you can locate the object inside this traverse, or from this boundary line also you can locate the objects. सपोज यहाँ ट्री है तो इसका ऑफसेट ये सर्वे लाइन से यहाँ तक का ले सकते हैं हम लोग. सो फॉर ईच सर्वे लाइन you have to measure length, forebearing, back bearing, and then we have to measure all the offsets inside or outside of the survey line, and that way we can complete the chain and compass survey. So with this knowledge we can collect the data from the field, and for that again to draw the map of that particular area covered by the chain and compass survey, we have to use the principle of compass surveying. So what principle of compass survey says? So it is all about the traversing. जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोज ट्रैवर्स या फिर ओपन ट्रैवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. सो compass survey is all about traversing by compass. So with the help of compass we have to measure the forebearing and back bearing, and that is the simple principle of compass survey. So here involving a series of connected lines, as already I have explained, A, B, B, C, C, D, D, E, ये सारी लाइन एक में से कनेक्टेड है, and then we are forming the traverse using this connected line, and then using the compass we will measure the magnetic bearing by using prismatic compass or surveyor compass. So we have to measure the important work in the compass survey, that is measurement of bearing. So here we will forebearing and back bearing we will measure. Along with that we have to measure the distance with the chain. So another is length. So length of survey line also we have to measure, and then we have to take the offset. So फिर हमको अदर ऑब्जेक्ट्स लोकेट करने हैं अंदर से, ट्रैवर्स के अंदर के या ट्रैवर्स के बाहर के, तो हमको फिर ऑफसेट लेना पड़ेगा. सो हियर द ट्रायंगुलेशन हम लोग इसके अंदर कंपास ट्रैवर्स में नहीं करते, दैट वी हैव टू रिमेंबर. ट्रायंगुलेशन वी आर यूजिंग इन केस ऑफ कंपास ओनली चेन सर्वे, बट हियर we are interested in measuring the bearing and forebearing and back bearing. So it is recommended for a larger area. चेन सर्वे से रिस्ट्रिक्टेड है हमारा कि चेन सर्वे में ज़्यादा लंबाई तक हम लोग लंबाई नहीं गिन सकते, रेंजिंग करने के लिए प्रॉब्लम है, स्लोपिंग ग्राउंड आएगा, डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन आएगा तो लेवल आएगी ज़्यादा. सो दैट डिस्टेंस कैलकुलेशन इज ऑलरेडी टिपिकल. वी हैव टू अप्लाई सो मेनी करेक्शन इन द डिस्टेंस मेजरमेंट. तो चेन सर्वे से थोड़ा बड़ा एरिया यदि हमको कवर करना है तो इंस्टेड ऑफ दैट फॉर लार्जर एरिया वी कैन यूज द कंपास सर्वे. कंपास सर्वे से हम लोग उसको आसानी से कर सकते. देन क्राउडेड एरिया वेयर द ट्रायंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल. जैसा चेन सर्वे क्राउडेड एरिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में से ट्रायंगल बनाने के लिए कई सारे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे आपके पास. सो इन सच सिचुएशन ऑल्सो कंपास सर्वे में आपको क्या करना है, सिर्फ बाउंड्री से घूमना है. यानी कोई बड़ा खेत है तो उसके बाउंड्री से घूम के सब बाउंड्री की लंबाई और उनका बेरिंग गिन लेने का, तो उसका शेप आप बना सकते कागज़ के ऊपर. So for a larger area we can adopt compass survey, and it is not recommended where the local attraction is appearing. compass survey जनरली ऐसे एरिया में नहीं करते हम लोग जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा है. सच एज पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का एरिया है तो सब जगह पे आपको लोहे के ऑब्जेक्ट, लोहे के ब्रिज, लोहे के ट्रैक्स और लोहे की इंजन और ये सारी जो
wagon or all these things are there. So many number of amounts of iron metal or steel metal elements are existing there. So there is a chances for local attraction. तो हमारे चुंबकीय सूची जो है वो एक तरफ झुक सकती है, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में लोकल अट्रैक्शन आ सकता है. सो ऐसी जगह पे जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन आ सकता है वहाँ पे हम लोग सिर्फ कंपास सर्वे को अवॉइड कर सकते. बट एवरीवेयर वी कैन यूज दिस एज ए ट्रैवर्सिंग. सो बाहर से बाउंड्री को कवर करने के लिए हम लोग कंपास ट्रैवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हियर व्हाइल प्लॉटिंग द कंपास ट्रैवर्स नाउ वी हैव टू टेक सम केयर. अब हमने लेंथ गिन ली है हर एक सर्वे लाइन की, और हमने फोर बेरिंग और बैक बेरिंग भी गिन लिया है. जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि यदि आपके फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में लोकल अट्रैक्शन है तो आपको सबसे पहले करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन करना पड़ेगा और करेक्टेड बेरिंग कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन. देन वी हैव टू मेक द चेक फॉर इंक्लूडेड एंगल. आपने फोर बेरिंग बैक बेरिंग करेक्ट कर लिए तो उस पे से आप इंक्लूड एंगल निकाल लो और इंक्लूड एंगल का चेक कर लो. फिर 2n-4 × 90 इतना वो इंक्लूड एंगल की सम आनी चाहिए. यदि ये नहीं आ रही है तो फिर आपको इंक्लूड एंगल में भी करेक्शन करने पड़ सकते हैं, बिकॉज वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग देर आर चांसेस ऑफ एरर्स आर देयर. सो इन सच सिचुएशन वी हैव टू डू दैट ऑल्सो. अब ऐसा डाटा आपके पास में आ गया कि आपके पास में फोर बेरिंग है, बैक बेरिंग है और लेंथ भी है. सो वी आर हैविंग लेंथ, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग. सो बाय यूजिंग दिस डाटा नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मैप ऑन द ड्राइंग शीट. अब ड्राइंग शीट पे यदि हमको मैप बनाना है सो देर आर डिफरेंट मेथड्स वी कैन अडॉप्ट फॉर दैट. सो फर्स्ट दैट वी कैन से इट इज बाय पैरेलल मेरिडियन थ्रू द ईच स्टेशन. तो हम लोग ईच स्टेशन से पैरेलल मेरिडियन को पास करके हमारा कंपास ट्रैवर्स बना सकते. जैसा कि आप लोग ड्राइंग शीट के लिए मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हो, तो मिनी ड्राफ्टर से जो वर्टिकल एक्स एक्सिस है हमारा, सॉरी वाई एक्सिस, उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन मान लो. सो यूर नॉर्थ डायरेक्शन इज फिक्स ऑन द ड्राइंग शीट. जरूरी नहीं है कि आप में मैप में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर ही होगी करके, लेकिन हमने ये मान लिया कि ऊपर की डायरेक्शन अभी की फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ है, तो ए बी लाइन का बेरिंग लेके एक लाइन निकाल लो और उसका जो भी एंगल है वो ले लो यहाँ पर और उसकी लेंथ यहाँ पर मार्क कर दो तो नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा. फिर ये पैरेलल है हमारा मेरिडियन, तो इसको ऐसी पैरेलल लाइन यहाँ बनाओ, तो यहाँ पर पैरेलल बन गया आपका. फिर यहाँ से दूसरा एंगल लो, ऐसा करके हम लोग फिर यहाँ से तीसरा एंगल लेंगे हम लोग, फिर यहाँ से जो भी है चौथा एंगल लेंगे. सो लाइक वे एट एवरी लोकेशन वी कैन कंसीडर द पैरेलल मेरिडियन. अब ये मैंने ऐसा पकड़ा, आप ऐसा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी कैच कर सकते. सो आई कैन कंसीडर दैट दिस इज माई डायरेक्शन. तो हर जगह पे मुझे ये डायरेक्शन लगेगी. तो मेरा स्टेशन यहाँ पर आएगा पहले ए, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, और ये ऐसा ऐसा और ऐसा. तो मेरा ये एंगल हो गया यहाँ पर ये एंगल हो गया, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया और यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया. सो एवरीवेयर आई एम मेजरिंग द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन. तो ये बने पैरेलल मेरिडियन का कंसेप्ट मैं इस्तेमाल करके मेरा जो एंगल आए वाले हैं वो एंगल मैं मार्क कर सकता हूँ एवरीवेयर. सो दैट वी कैन कंसीडर. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसको हमने नॉर्थ मान के ये पॉइंट ले लिया उसके ऊपर, और यहाँ से जो लाइन है उसका बेरिंग लिया, जो भी एंगल दिया होगा उसके हिसाब से, और लेंथ प्लॉट की, और दूसरा पॉइंट हमने पाइट पता कर लिया. फिर दूसरे पॉइंट पे फिर से हमारा ये इसको पैरेलल ये लगाया मेरिडियन, फिर यहाँ से दूसरे लाइन का बेरिंग लिया और उसकी लाइन की लंबाई मार्क की यहाँ पे, और फिर तीसरा पॉइंट आपको मिल गया. फिर यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन निकाली इसको पैरेलल, यानी ये पैरेलल मेरिडियन हो गया आपका, और यहाँ से फिर तीसरे लाइन का आपने एंगल लिया ये वाला, और फिर यहाँ पर फिर से लाइन बनाई वर्टिकल ऐसी इसको पैरेलल, तो ये आपका पैरेलल मेरिडियन हो गया. और यहाँ से चौथी लाइन का आपने बेरिंग लिया तो वो लाइन ऐसी आ गई. सो लाइक वे एट एवरी लोकेशन वी आर कंसिडरिंग दैट आवर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड वट एवर यू कैन फिक्स that meridian direction, and from with that respect you can measure the angle always.
और उसके बाद में फिर आपका नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है वो आप दिखा सकते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर. सो दैट इज वन अदर मेथड. अदर मेथड इज बाय कंसिडरिंग द इंक्लूडेड एंगल. तो एक तो फोर बेरिंग को मार्क करके हम लोग यहाँ पे ये ट्रैवर्स को प्लॉट कर सकते हैं. दूसरा तरीका हमारे पास में है, हम लोग इंक्लूडेड एंगल को भी मार्क कर सकते हैं. तो इंक्लूड एंगल के लिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे कुछ मालूम नहीं अभी, तो मैं सीधी सीधी एक लाइन निकालूंगा ए बी, ये पॉइंट ए और ये बी. अब बी एंगल यदि मुझे पता है तो बी एंगल आ गया मेरा 120 डिग्री का, तो मैं 120 डिग्री में यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, ये वाला एंगल मैं 120 डिग्री का लूंगा और उसकी जो लंबाई है वो मार्क करूंगा यहाँ पे. पहले L1 लिया, फिर 120 का एंगल लेके L2 लिया, फिर ये पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ से आगे का एंगल जो वो लूँगा मैं यहाँ पे और आगे की लाइन मिलेगी मुझे, तो ये बी सी मिल गया. यहाँ का एंगल समझ लो 134 डिग्री है. फिर यहाँ का एंगल जो है वो ले लिया आपने ऐसा, तो ये वाला एंगल आपने इंक्लूड एंगल कैलकुलेट किया तो वो ले लिया आपने फिर यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपने ये लिया और ये भी एंगल आपने ले लिया. सो एवरी टाइम यू आर टेकिंग द इंक्लूड एंगल. तो एक सर्वे लाइन बनाई, फिर इंक्लूड एंगल लिया, फिर दूसरी सर्वे लाइन बनाई, फिर इंक्लूड एंगल लिया, फिर तीसरी सर्वे लाइन बनाई, फिर इंक्लूड एंगल लिया, फिर चौथी सर्वे लाइन बनाई, फिर इंक्लूड एंगल लिया, फिर पांचवी सर्वे लाइन बनाई. सो लाइक वे ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द ट्रैवर्स बाय यूजिंग इंक्लूडेड एंगल. तो आपको पहले इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करने पड़ेंगे. इसके अंदर इंक्लूड एंगल कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर बेरिंग से हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं यहाँ पर. और तीसरा तरीका है बाय कंसिडरिंग द सेंट्रल मेरिडियन. सो यहाँ भी हम लोग किसी एक सेंटर पॉइंट से सारे इसके एंगल के मेरिडियन ले सकते हैं, ये सब पॉइंट्स के, और इसके हिसाब से भी हम लोग हमारा पूरा ट्रैवर्स जो है वो बना सकते. सो लाइक वे बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर यू कैन ड्रा द क्लोज ट्रैवर्स. तो इसके अंदर अभी क्लोज ट्रैवर्स या ओपन ट्रैवर्स, ये हमने जैसा भी एग्जांपल देखा कि क्लोज ट्रैवर्स इज यूज फॉर द बाउंड्री, पॉन्ड, बिल्डिंग, फार्म, ईटीसी, ऐसे टाइप के लिए यूज़ करते. और ओपन ट्रैवर्स हम लोग रोड के लिए, रिवर के लिए, रेलवे के लिए, कोस्टल बैंक के लिए, इस प्रकार के लिए हम लोग क्लोज ट्रैवर्स यूज़ करते. सो लाइक वे वी कैन यूज द कंपास ट्रैवर्सिंग फॉर प्लॉटिंग द मैप ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. अब ये कंपास ट्रैवर्सिंग करने से पहले जो मैंने बताया आपको कि यू हैव टू मेक द टू चेक्स. सो इन द क्लोज ट्रैवर्स स्टेशन एट ए स्टेशन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग डिफरेंस शुड बी 180. ये आपको चेक करना पड़ेगा. आपने इसके पहले देखा है लेक्चर नंबर 3 में करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन. तो यदि आपका 180 डिग्री का फर्क नहीं है फोर बेरिंग बैक बेरिंग में, तो पहले करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन करके आपको करेक्टेड बेरिंग निकालने पड़ेंगे. सो दैट वी हैव टू डू. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल. इंक्लूड एंगल निकालेंगे हम लोग, उसका फार्मूला हमने देखा है इसके पहले. सो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, इसे आप इंक्लूड एंगल निकाल लो. और इंक्लूड एंगल निकल गया, सो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री से आप इंक्लूड एंगल की टोटल सम आ रही कि नहीं इतनी बराबर, वो चेक कर सकते हो आप. सो हियर यदि ये आपकी इंटीरियर एंगल की जो सम है, फॉर एग्जांपल नाउ हियर नंबर ऑफ साइड्स आर सपोज 5, A B C D और E, ये वाला क्लोज ट्रैवर्स में 1 2 3 4 5 साइड है. सो n इज इक्वल टू 5. और हमारा इंक्लूड एंगल की सम कितनी आनी चाहिए, सम आनी चाहिए हमारी 2n माइनस 4 इंटू 90 आनी चाहिए. तो 2 इंटू n बोलो तो 5 है हमारा, ये माइनस 4 और इंटू 90, तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 4 6 9 सौ 54, यानी 540 डिग्री का फर्क आ गया. 540 डिग्री सम आनी चाहिए. तो इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि टोटल आपकी 540 डिग्री आ रही कि नहीं आ रही. यदि ये 540 डिग्री नहीं आती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द एंगल्स. तो सब एंगल में वो डिफरेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो यहां पे समझ लो ये 540 के बजाय आपकी टोटल आ गई 546. तो डिफरेंस कितना है यहां पे, 6 डिग्री का. सो डिफरेंस इज 6 डिग्री. और अपने टोटल एंगल कितनी इसके अंदर ट्रैवर्स में 1 2 3 4 5 एंगल है. तो 6 डिग्री डिवाइड बाय 5 कितना एंगल आ रहा अपना ये 1.2 डिग्री का. तो 1.2 डिग्री का करेक्शन हमको हर एक एंगल में करना पड़ेगा, हर एक एंगल में.
हर एक एंगल में 1.2 डिग्री हमको माइनस 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 करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल ज़्यादा आ रही है हमारी। तो ऐसा करेंगे तो टोटल आपके बराबर 540 आ जाएंगी फिर। सो दिस वे द इंक्लूडेड एंगल चेक यू हैव टू कैरी आउट, एंड फिर उसके बाद में आपका लोकल अट्रैक्शन यदि आपका है तो उसके लिए भी करेक्ट करेंगे, तो आपके सारे एंगल्स की सम भी बराबर आएंगी और आपका लोकल अट्रैक्शन भी निकल जाएगा। और आप जब उसके हिसाब से ट्रैवर्स को प्लॉट करेंगे तो आपका ट्रैवर्स बराबर ऐसा क्लोज आ जाएगा। सो यू कैन ड्रॉ द क्लोज ट्रैवर्स लाइक दिस। सो दिस वे you have to see that we are applying the correction for local attraction and we are also checking the angle for included angle check. Similarly you can also check for the exterior angle also. जैसा हम लोग इंटीरियर एंगल की जो सम है वो 2n - 4 × 90 आनी चाहिए, उसी प्रकार से एक्सटीरियर एंगल की यदि हम लोग कैलकुलेशन करते तो वो 2m + 4 × 90 आना चाहिए। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन चेक। एंड अनदर also check you can carry out which is regarding the deflection angle. तो deflection angle की total 360 डिग्री आनी चाहिए। So he see here, suppose there is one line AB and another line is BC. So this is A, B and C. So if I take the angle with respect to north direction, तो ये हो गया मेरा AB का bearing. So you can see that angle with respect to north it is bearing. ये एक डेफिनेशन है हमारी। दूसरा है कि ये वाला एंगल, पहली सर्वे लाइन और दूसरी सर्वे लाइन का एंगल, तो ये एंगल आपका क्या होगा, उसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। यदि हम लोग ये ए बी सर्वे लाइन को और आगे निकल जाते हैं ऐसा, तो ये बचा वाला जो एंगल है बाहर का, सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। तो यदि आपको ये डिफ्लेक्शन एंगल पता है, इंक्लूड एंगल नहीं पता है, डिफ्लेक्शन एंगल पता है, तो भी आपका ट्रैवर्स बना सकते हैं आप। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्वे लाइन बनाई मैंने ए और बी से, और फिर इसको आगे बढ़ाया थोड़ा सा, और यहाँ से डिफ्लेक्शन एंगल लिया मैंने तो दूसरी लाइन बनेगी मेरी। फिर इसको आगे बढ़ा के तीसरा लूँगा मैं तो तीसरी लाइन बनेगी, फिर यहाँ से चौथी बनेगी और यहाँ से पांचवी बनेगी। तो ये एंगल, ये जो एंगल है ये है डिफ्लेक्शन एंगल। तो सर्वे लाइन को एक्सटेंड करने के बाद में फिर ये वाला एंगल बाहर का, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसकी टोटल भी चेक कर सकते हैं आप 360 डिग्री आ रही कि नहीं आ रही करके। एंड सिमिलरली द लीनियर मेजरमेंट ऑफ द 2 डे फ्रॉम द बोथ द डायरेक्शन वी शुड ऑब्जर्व। यदि आपको कंपास ट्रैवर्स क्लोज एक्यूरेट चाहिए तो आपको तो अलग अलग 2 दिन उसकी लंबाई अलग अलग बार गिननी चाहिए बराबर, और उसका एवरेज लेके आप लंबाई को कंफर्म कर सकते। उसके अलावा फिर टेप का इस्तेमाल कर सकते या फिर स्टैडिया मेथड का इस्तेमाल कर सकते। और जो डिस्टेंसेस है हमारे वो हमको एकदम एक्यूरेट चाहिए। सो इन ओवरऑल इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमको कंपास सर्वे यदि करना है, तो कंपास सर्वे में आपको सिंपल काम क्या करना है कि चेन या टेप का इस्तेमाल करके सारे जो साइड्स है उसकी लंबाई गिनना है सर्वे लाइन की, और सारे जो साइड्स है ट्रैवर्स की उसका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिनना है। सो इट इज़ वेरी इजी टू कंडक्ट इन द फील्ड, वेरी इजी बाय यूजिंग ओनली कंपास। यू हैव टू मेजर द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन डू सम कैलकुलेशन ऑन द पेपर एंड देन यू कैन प्रिपेयर दैट। सो इस प्रकार से यदि हम लोग क्लोज ट्रैवर्स या ओपन ट्रैवर्स करते हैं, तो क्लोज ट्रैवर्स के लिए तो आपने चेक देख लिया कि 2n - 4 × 90 डिग्री से इंक्लूड एंगल को चेक कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल की टोटल 360 डिग्री दे सकते हैं, या फिर लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन हम लोग लगा सकते हैं। सो ऑल दैट चेक यू कैन अप्लाई इन केस ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स यदि है तो ओपन ट्रैवर्स में हमको इस प्रकार से कट ऑफ लाइन या चेक लाइन लेनी चाहिए। सो हियर इन केस ऑफ ओपन ट्रैवर्स हम यदि ये जो लंबाई है लीनियर मेजरमेंट ऑन द 2 डेज फ्रॉम द बोथ द डायरेक्शन यदि हम लोग गिनते हैं, एक बार इधर से उधर और उधर से इधर, ऐसा करके दूसरे दिन भी रिपीट, यानी एक लाइन के लिए 4 बार ऑब्जर्वेशन लेंगे और वो चारों का एवरेज निकाल के यदि लंबाई लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली, तो आपका लंबाई आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी ओपन ट्रैवर्स के लिए। दूसरा है कि आपको टेप और स्टैडिया मेथड से भी आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, और ओपन ट्रैवर्स के लिए
आपको कट ऑफ लाइन और ऑक्सिलरी पॉइंट चेक करने के लिए लेना चाहिए। तो यदि आपका ओपन ट्रैवर्स ऐसा जा रहा है, ऐसा ये जा रहा है आपका ओपन ट्रैवर्स ऐसा 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 ऐसा, तो आप 2-3 लाइनें के बाद में एक कट ऑफ लाइन का ये भी मेजरमेंट कर लो आप, या फिर यहाँ से ये मेजरमेंट कट ऑफ लाइन का कर लो। आपका ट्रैवर्स लाइन ये है, लेकिन कट ऑफ लाइन का लिए भी डिस्टेंस आपको गिनना पड़ेगा, ताकि आपका ये ए और डी इसका नक्शा बनाते समय आपको चेक करते आना चाहिए कि बराबर ड्राइंग बन रहा कि नहीं बन रहा अपना, उसके अंदर एरर नहीं आनी चाहिए करके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते कि जैसा यहाँ पर दिखाया गया, ये हमारा ए बी सी डी ई और ये क्लोज ट्रैवर्स है, तो ये ट्रैवर्स के किसी एक साइड में आप ऑक्सिलरी पॉइंट ले लो और ये पॉइंट से ए बी सी डी ई एफ ये सब लाइन के बेयरिंग गिन लो। तो बेयरिंग गिनने से भी आपका ये जो पॉइंट है ये जगह नहीं छोड़ेंगे बराबर अपनी, उसका मार्किंग करते समय आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस इतना आना चाहिए ए बी और एंगल ये इतना आना चाहिए जो पी से हमने गिना करके। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन इंश्योर दैट your open traverse is also correctly plotted on the drawing sheet or your closed traverse is also correctly plotted on the drawing sheet. But if we proceed with this procedure, यदि हम लोग कोई चेन एंड कंपास सर्वे करते हैं और उसको ड्राइंग शीट पे बनाने जाते हैं, so what actually happens? So you can see here that it is given that ये जो ड्राइंग है हमारा, ये ड्राइंग में हमने ऑब्जर्वेशन लिए, सर्वे लाइन की लंबाई गिनी और फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिना, और फिर हमने यहाँ से ए से हमने प्लॉट करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग किया तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चालू हो गया, मैं ए से, और ए से मैंने प्लॉट किया तो मेरी ये लाइन बन गई ई वाली। फिर यहाँ पे मैंने लिया तो मेरी आगे की लाइन बन गई, या ए से मैंने शुरू किया तो पहले मैं बी पे गया, या बी से मैं फिर सी पे गया, सी से मैं डी पे गया, डी से मैं ई पे गया और ई से मैं वापस आया ए पे। तो ए से बी सी डी ऐसा चालू करने के बाद में मेरा क्या हुआ, एक्चुअली ये लाइन जो है ये ए से यहाँ से शुरुआत किया था मैंने बी के तरफ, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ, या आखिरी का जो पॉइंट है वो वापस यहाँ आना चाहिए था मेरा ए के पास। सो व्हाट हैपन, एक्चुअली मैंने जब ड्राइंग बनाते गया मैं तो आखिरी का पॉइंट मेरा इसके पॉइंट के साथ मैच नहीं हुआ। तो इसके वजह से ये जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो ये आपका ड्राइंग क्लोज ही नहीं हो रहा है आपका। एक्चुअल में फील्ड में आपका ट्रैवर्स क्लोज है, लेकिन ड्राइंग पे आपका क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये जो फर्क आ गया इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एरर। यानी ट्रैवर्स बनाते गए हम लोग और आखिरी का एंड उसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा, यहाँ पे एरर आ गई, गैप आ गई उसके अंदर। तो ये जो आखिरी आने वाली गैप है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर। तो अब ये क्लोजिंग एरर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ग्राफिकली। मैथमेटिकली हमने लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन लगा लिए, इंक्लूड एंगल कैलकुलेट करके चेक कर लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे ऑब्जर्वेशन में, लंबाई में, एंगल गिनने में एरर हो सकती है। उसके वजह से जब हम लोग ड्राइंग बनाते ट्रैवर्स का तो पहला एंड और आखिरी का एंड दोनों एक में को टच नहीं होते। सो फर्स्ट एंड डज नॉट मैच विद द लास्ट एंड और लास्ट एंड डज नॉट मैच विद द फर्स्ट एंड। सो देयर इज ए स्मॉल डिस्टेंस गैप फॉर क्लोजिंग दैट ट्रैवर्स। सो सच डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं उसको क्लोजिंग एरर। सो दैट एरर वी हैव टू एलिमिनेट। क्लोजिंग एरर हमको एलिमिनेट करते आनी चाहिए और उसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो वी यूज द ग्राफिकल मेथड फॉर एलिमिनेटिंग द क्लोजिंग एरर इन ए क्लोज ट्रैवर्स। सो कंपास ट्रैवर्स से यदि क्लोजिंग एरर आती है ड्राइंग शीट बनाने के बाद में तो उसको आपको ग्राफिकली रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो क्लोजिंग एरर है उसकी लिमिट रहती है जनरली 15 मिनट रूट एन इतना मिनट्स में रहती है। कितनी रहनी चाहिए करके वो, वेयर एनी द नंबर ऑफ साइड, यानी 1 2 3 4 5 6 साइड है तो 6 का रूट लेके उसको 15 मिनट से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, उतनी डिग्री की क्लोजिंग एरर हमारी आ सकती है। सो दैट वे वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। और रिलेटिव क्लोजिंग एरर यदि निकालना है तो अमाउंट ऑफ क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर करेंगे तो आप क्लोजिंग एरर का रिलेटिव क्लोजिंग एरर भी निकाल सकते हो। यानी ये इतना डिस्टेंस बोले तो आपकी क्लोजिंग एरर, और उसको ये लंबाई की टोटल करेंगे तो पेरीमीटर, तो क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर
ये करेंगे तो रिलेटिव क्लोजिंग एरर हम लोग निकाल सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो एरर कैलकुलेशन यू कैन डू. और ये रिलेटिव मैक्सिमम क्लोजिंग एरर जो है उसकी लिमिट होती है 1:600. रिलेटिव क्लोजिंग एरर शुड बी ऑलवेज लेस देन 1:600. सो हियर ऑलवेज क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, इसकी वैल्यू हमारी 1:600 से छोटी आनी चाहिए. दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज द रिलेटिव क्लोजिंग एरर. अब ये क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कैसा करना है ग्राफिकली, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट वी विल नाउ सी. सो हियर व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू. तो मैंने तो अभी यहाँ पर ए से शुरुआत किया, फिर मैंने ये बी तक लाइन निकाला, फिर मैंने सी तक लाइन निकाला, फिर मैंने डी तक निकाला, फिर मैंने ई तक निकाला और फिर मैंने आखिरी निकाला. तो ए पॉइंट मेरा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे चेंज आ गया वहाँ पे. तो ये इतनी जो गैप है, ये गैप को मैं यहाँ पे हरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ. सो दिस गैप इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एरर. अभी इतनी गैप आपको एलिमिनेट करनी है, यानी आपका ट्रैवर्स क्लोज नहीं रह गया, ओपन रहेगा. इतनी गैप से ट्रैवर्स आपका ओपन रह गया. अब ये एलिमिनेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है. सो वी विल सी दैट हाउ दिस ग्राफिकली रिजॉल्व. ग्राफिकल मेथड क्या है. तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको ये जो ए बी बी सी डी सी डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के हिसाब से एक सूटेबल स्केल लेके यहाँ पे आप ए बी डिस्टेंस मार्क करेंगे, फिर वहाँ से आगे करेंगे बी से सी पे मार्क करेंगे. अब यहाँ पे मैंने लिया 200 इज इक्वल टू 1, यानी 20 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की स्केल लिया मैंने. 20 मीटर के लंबाई को मैं 1 सेंटीमीटर निकालूंगा. ऐसा करके ए बी जो डिस्टेंस था उसको मैंने यहाँ पे बनाया, फिर उसको कंटिन्यू करके बी सी बनाया, फिर आगे सी डी बनाया, फिर यहाँ से डी ई बनाया, फिर यहाँ से ई ए बनाया. अब ये कुछ कम आएगा कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसी जैसी आपकी ट्रैवर्स की साइड्स की लंबाई है उसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन में आपको ए बी डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस डी ई और डिस्टेंस ई ए ये मार्क करना है. तो आपने इतना मार्क कर दिया पहले. सो यू हैव मार्क डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी डी एंड ई ए बाय यूजिंग स्केल 1:20 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब ये हो गया आपका पेरीमीटर. और ये पेरीमीटर के लिए आपकी क्लोजिंग एरर कितनी आई है ड्राइंग शीट पे, इतनी आई वाली है ये. तो आपको कंपास के दोनों चाप के पॉइंटर में इतना डिस्टेंस लेना है. सो आई हैव टू टेक दिस मच डिस्टेंस इन द कंपास पॉइंटर, डिवाइडर का जो पॉइंटर रहता है हमारा उसमें, और इतना डिस्टेंस आपको यहाँ पे वर्टिकली मार्क करना है. सो आई विल मेजर दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग द डिवाइडर कंपास एंड मार्क दिस डिस्टेंस हियर. तो मुझे एक लाइन यहाँ मिल जाएगी. तो ये जो लाइन है एक्चुअली, ये लाइन एक्चुअली मेरी हो गई क्लोजिंग एरर को, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ. सो दिस हाइट इज माय क्लोजिंग एरर, दिस साइड इज क्लोजिंग एरर. तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने जो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही, और उसके ऊपर मैंने क्लोजिंग एरर को मार्क किया. और अब ये लाइन को मुझे ज्वाइन कर देना है ये आखिरी के पॉइंट तक. इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल पेरीमीटर के लिए मेरी एरर इतनी है. तो यदि एक लाइन छोड़ देंगे तो बच्चे वाले लाइन के लिए कितनी एरर रहेंगी, इतनी रहेंगी. सो यू कैन से दैट फॉर दिस मच डिस्टेंस एरर इज लेस, या फिर फॉर दिस मच डिस्टेंस एरर इज लेस, फॉर दिस मच डिस्टेंस एरर इज अगेन लेस, फॉर दिस मच डिस्टेंस एरर इज वेरी स्मॉल. तो पेरीमीटर जैसा जैसा बढ़ता जाएगा तो टोटल क्लोजिंग एरर इतनी है, लेकिन पेरीमीटर यदि कम कम होते जा रहा है तो एरर हमारी कम कम होते जाएंगी. ये यहाँ पर इंडिकेट किया गया ग्राफिकली, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ए पॉइंट के ऊपर इतनी एरर रहेंगी, इतनी एरर रहेंगी. तो उसके पहले ई पॉइंट के ऊपर एरर कम हो जाएगी, उसके पहले डी पॉइंट पे और कम हो जाएगी, उसके पहले सी पॉइंट पे और कम हो जाएगी, और उसके पहले बी पॉइंट पे और कम हो जाएगी. यानी एरर कम कम होते जा रही है. अब इतना तो काम हमारा बन गया, यानी एरर हमने हर एक पॉइंट पे कितनी एरर है ये ग्राफिकली निकाल लिया. फिर क्या करना है हमको, अब यहाँ पे ये जो क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन है ये ग्रीन कलर वाली, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये मेरी क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन है ऐसी वाली. तो ये लाइन को पैरेलल हर एक पॉइंट में से ऐसे मैं पैरेलल लाइन निकालूंगा. जो पैरेलल लाइन मेरी ये क्लोजिंग एरर के लाइन को पैरेलल है. सो आई विल ड्रा द पैरेलल लाइन
थ्रू ईच स्टेशन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। ये लाइन मैंने बना ली। अब ऐसा करने के बाद में आपको फिर से डिवाइडर में देखो, पहला इतनी एरर क्लोजिंग एरर ए पर है, तो ये तो आपने पहले ही मार्क कर दिया था। अब इतनी एरर ले लो, ई पर एरर कम हो गई, तो ये एरर इतनी कम हो गई ना, तो इतनी एरर आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ से ई स्टेशन आपको एक मिल जाएगा यहाँ पे। सो आई विल यूज विद द ब्लू कलर। यहाँ पे आपको ई मिल जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस आपने लिया ना, ये वाला ई वाला है। फिर इतना डिस्टेंस डी पे मार्क करना है आपको, तो ये नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको एक। अब आप क्या कर रहे हो, देखो आपका ओरिजिनल पॉइंट नीचे है, गलत वाला पॉइंट ऊपर गया, तो हर एक जगह पे नीचे ही आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। हर एक जगह पे ये पॉइंट से नीचे आपका ओरिजिनल पॉइंट है, इसलिए ये ई पॉइंट से नीचे आपको एरर लेनी पड़ेगी। यहाँ पे डी पॉइंट से नीचे एरर लेनी पड़ेगी इतनी, फिर सी पॉइंट से नीचे एरर लेनी पड़ेगी इतनी आपको, और बी पॉइंट से नीचे एरर लेनी पड़ेगी इतनी आपको। तो ई पे इतनी एरर, डी पे इतनी एरर, सी पे इतनी एरर और बी पे इतनी एरर। हर जगह पे मैंने एरर के पॉइंट मार्क कर दिए, ये क्लोजिंग एरर के डायरेक्शन पे। तो आपको नए वाले पॉइंट मिल गए अभी। तो नया पॉइंट ई मिल गया आपको यहाँ पर, दूसरा डी यहाँ पर मिल गया, तीसरा सी यहाँ मिल गया और चौथा बी यहाँ मिल गया। तो अब इसको ज्वाइन करके आप आपका ट्रैवर्स क्लोज कर दो। यानी ए से शुरुआत करेंगे ई तक, ई से करेंगे डी तक, डी से करेंगे सी तक, सी से करेंगे बी तक और बी से करेंगे ए तक, यानी क्लोज हो गया आपका डायरेक्ट बराबर यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाईलाइट करके देखेंगे हम लोग। तो ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इस प्रकार से आपका ट्रैवर्स जो है अभी क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग एरर जो आई थी वो अपने यहाँ पर मार्क किए, उसको ट्रायंगल में डिवाइड किए और ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद में आपकी क्लोजिंग एरर कम होते आ गई। पर हर जगह पे जो कम आई वाली एरर है वो हर जगह पे आपने ये कम क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन की लाइन बना के उस पर मार्क की, तो आपको नए पॉइंट मिलेंगे और वो नए पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपका ट्रैवर्स क्लोज हो जाएगा। सो इस प्रकार से ग्राफिकल एडजस्टमेंट करके हम लोग हमारी जो क्लोजिंग एरर है वो एलिमिनेट कर सकते। तो ये जो ट्रायंगल बनाया हमने, इसको बोलेंगे हम लोग एलिमिनेशन ऑफ क्लोजिंग एरर। ये हो गया आपका एलिमिनेशन ऑफ क्लोजिंग एरर, सॉरी नॉट एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजिंग एरर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजिंग एरर। और ये जो फिगर है इसमें पहले आपने ओरिजिनल ट्रैवर्स निकाला और फिर वो क्लोजिंग एरर को आपने यहाँ पे मार्क किया और फिर आपका करेक्टेड ट्रैवर्स निकाला। तो आपका जो करेक्टेड ट्रैवर्स है ये डार्क लाइन से बनाना है आपको, ये वाला, और जो पहले बनाया था आपने वो डॉटेड लाइन से बनाना है। तो पहले आप डॉटेड लाइन से या फेंट लाइन से ट्रैवर्स बनाएंगे और उसके अंदर क्लोजिंग एरर आ गई तो वो क्लोजिंग एरर यहाँ पे ट्रायंगुलर के हिसाब से, पेरीमीटर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो जो डिस्ट्रीब्यूट आई वाली एरर है वो हर जगह पे आपको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा और सेम डायरेक्शन अप्लाई करके आपका नए पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, उनको ज्वाइन करके आपका क्लोज ट्रैवर्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर एकदम इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इस पे आपको शीट भी बनानी है, ड्राइंग शीट। सो इन द फील्ड यू कैन टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेंथ एंड फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, और आप उसका ट्रैवर्स बना के देखो और क्लोजिंग एरर आती है उसको, तो इस प्रकार से आप ग्राफिकली उसको रिजॉल्व करके देखो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन द कंपास सर्वे। सो लाइक वे बाय यूजिंग द क्लोजिंग एरर we have eliminated that closing error and that is done by the using Bordwich rule। जो अभी हमने closing error को रिजॉल्व किया ग्राफिकली, so that was stated by Bordwich first। तो Bordwich ने जो रूल बताया वो क्या बताया, closing error in the closed traverse at each station is always in the direction parallel to the direction of total closing error। तो ये हमने किया ये पहले कि जो हमारा closing error की डायरेक्शन आई थी उसको ही पैरेलल आपको हर जगह पे क्लोजिंग एरर लेनी पड़ेगी। और करेक्शन एट ईच स्टेशन पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मेजरमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, यानी पेरीमीटर के हिसाब से अब उन्होंने उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए। तो पहले जगह पे एरर आपकी थोड़ी ज़्यादा थी, फिर दूसरे जगह पे कम आई आपकी, फिर तीसरे जगह पे और कम आई, चौथे जगह पे और कम आई और पाँचवीं जगह पे और कम आई। तो आपका जो ट्रैवर्स है वो ट्रैवर्स आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो गया।
पहले ट्रैवर्स आपका ओपन था। सो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपकी डायरेक्शन ऑफ द आखिरी की जगह पे क्लोजिंग एरर जो डायरेक्शन में आ गई, वही डायरेक्शन आपको हर जगह पे रखनी पड़ेगी क्लोजिंग एरर को मार्क करने के लिए। और पेरीमीटर के हिसाब से आपने टोटल पेरीमीटर के हिसाब से क्लोजिंग एरर टोटल कितनी है और उसको फिर पेरीमीटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय द बॉडविच रूल। तो ग्राफिकल एडजस्टमेंट जो हमने किया ना क्लोजिंग एरर का, वो है ग्राफिकल बॉडविच रूल ही है वो एक प्रकार से। सो व्हाट एग्जैक्टली इन द समरी वी कैन से द टोटल क्लोजिंग एरर इज प्रोपोर्शनल टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। ये है हमारा बॉडविच रूल, यानी पेरीमीटर के प्रोपोर्शन में हमारी क्लोजिंग एरर होती है। तो पूरा टोटल क्लोजिंग एरर के लिए पूरा पेरीमीटर, यदि हम 4 साइड पकड़ते हैं तो क्लोजिंग एरर कम हो जाएंगी, 3 पकड़ेंगे तो और कम होंगे, 2 पकड़ेंगे तो और कम होंगे, 1 पकड़े तो और कम होंगे। सो लाइक वे द टोटल क्लोजिंग एरर इज प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। ये हमारा बॉडविच रूल है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मैथमेटिकली कैलकुलेट दैट व्हाट इज द क्लोजिंग एरर वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे बॉडविच रूल को मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। सो मैथमेटिकली जो करेक्शन है वो करेक्शन हमको लेंथ ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स इनटू टोटल एरर, अभी यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर बाद में करेंगे हम लोग, बट टोटल एरर जो है, टोटल क्लोजिंग एरर को हम लोग लेंथ ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स इस प्रोपोर्शन से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। सो लाइक वे वी विल सी दैट बैलेंसिंग ऑफ द theodolite traverse in the next unit, but that you have to remember that is actually the Bordwich rule, where the total closing error is proportional to the perimeter of the traverse. That simple rule we have to remember, और उसी का इस्तेमाल करके हमने ग्राफिकल एडजस्टमेंट से क्लोजिंग एरर को अभी एलिमिनेट करना सीखा है कंपास ट्रैवर्स के लिए। सो इन द कंपास ट्रैवर्स वी हैव यूज द Bordwich rule for elimination of the closing error, and thus in this way we can draw the closed traverse on the drawing sheet. तो ड्राइंग शीट पे क्लोज ट्रैवर्स बनाने के लिए यदि क्लोजिंग एरर आती है तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, और तब जाके आपका मैप का जो भी शेप है वो बराबर आपका परफेक्ट आएगा। सो इन दिस लेसन वी हैव सीन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास ट्रैवर्स, then what is the difference between the closed traverse and open traverse, what is closing error, and then how that closing error can be graphically adjusted, that we have seen in this lesson. So for this lesson we will stop here, and in the next session again we will little more understand regarding the errors in the compass survey. So till then, thank you and goodbye for watching this video lecture. Thank you.